question is, first match and second match today you had spent a long time at the wicket. Like, did you see any change that you batted second on the first day and today you batted first? The track, how was the track and how would you look at it, India's batting approach? If you could sum it up for us. See, I think the track was slightly on the slower side, but at the same time, I think we had enough run on the board on both the innings. But on the last match, we chased, and this one we batted first. So when the wicket was much better for batting. On the second inning, it became slower and slower as the game progresses. And today it was the same, but they batted well in the middle over. That's why they chased down the target today. Hi Rishabh, well played today. I just wanted to ask, is the form of Bhuvneshwar Kumar becoming a concern and the lack of wickets in the power play overs? Do you think the team needs to get better at it? No, as team, we are always looking to improve, but I don't think so. There is too much concern about Bhuvi because obviously we are playing a one day after a long time, so we are just getting used to the momentum. Obviously disappointed after losing the series, but at the same time we are looking to learn from our mistake. Rishabh, can you tell us what the conversation was when you were batting with KL Rahul in the middle because you walked out with India not in the best of position? What was the conversation like? What was the plan when you batted there? The only plan we had was to build a partnership there and take the game deep as much as possible. And I thought me and Kale, we had a good partnership in the middle. If we could have carry on with that partnership for a little more longer, I think we would have 15 run more than what we got today. So I think, but as a partnership point of view, we batted well both of us. मेरा सवाल है कि आप जब बैटिंग करने आए थे, जस्ट 2 विकेट गिरे तो फर्स्ट बॉल ही आप थोड़ा स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी। क्या ये मतलब एनकरेज किया गया था आपको कि आप अपना नेचुरल गेम खेले इवन इन दैट सिचुएशन, या कोई ऐसा प्लान था कि अटैक पे रहना है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अटैक पे रहना है या डिफेंस पे रहना है। और स्टेप आउट मैंने सिंगल लेने के लिए करा था, तो ऐसा कोई अटैकिंग नहीं होता। स्टेप आउट सिंगल भी ले सकते हैं स्टेप आउट करके। सो वही था कि बॉलर को थोड़ा अनसेटल करके सिंगल डबल, क्योंकि स्लो ट्रैक था, थोड़ा फीट यूज़ करें तो ज़्यादा ईजी रहता है बैटिंग करने के लिए, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा था। Yeah, Rishabh, someone who was captain in IPL as well. Given how India is planning to build a team for the 2023 World Cup, someone who's batting at number 4, how do you like to see the batting approach going forward? I think as a batting point of view, we are fine. We are going fine. We are learning from our mistake, and every day as Indian cricket team, we try to improve our cricket. That's the only thing we are looking forward. Yeah, Rishabh, despite the series loss, आप पॉजिटिव क्या दिखेंगे एज अ टीम ये 2 मैचेस में? पहले मैच में विराट ने काफी शानदार पारी खेली, शिखर भाई ने भी काफी रिस्पॉन्सिबल नॉट खेला। आज आपकी बैटिंग और आप क्या पॉजिटिव देखना चाहेंगे, या सिर्फ ये 3 पॉजिटिव आप देखेंगे पूरे सीरीज में? नहीं, ये 3 पॉजिटिव तो है, और एक पॉजिटिव और था कि शार्दुल ने जैसे बैटिंग करी डाउन द ऑर्डर दोनों मैचों में, वो भी एक पॉजिटिव था। वेंकी ने आज जैसे बॉल डाला, एक्चुअली थोड़ा 1-2 ओवर में ज़्यादा रन आए, बट स्टिल ऐसा लगा कि वो बॉल डाल सकता है। सो देयर लॉट ऑफ पॉजिटिव विच वी कैन टेक, मेरे को लगता है एज अ टीम। सो हमने देखा कि दोनों मैचेस में पिच स्पिनर्स को मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने हमारे स्पिनर्स को आउटबॉल कर दिया? आई थिंक वो थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट थे अपने लाइन और लेंथ में, और दे आर यूज्ड टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, and we are playing a one day after a long time, so there are lots of factors which we can talk about, but as a team we are always looking to improve ourselves. Hopefully we can improve all this mistake in our coming matches. ऋषभ भाई, विराट भाई ने बताया था टेस्ट क्रिकेट के दौरान कि उन्होंने आपसे बात की है प्रैक्टिस सेशंस के दौरान कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने भी बताया था कि आपके साथ बात की है। आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि किस तरीके से टीम मैनेजमेंट या टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं आपके गेम को लेकर के, क्योंकि काफी बात होती है, तो किस तरीके से आपको उनका प्लान क्या रहता है आपके लिए? और एक ये कि ये जो नंबर 4 करोड़ आपको इंग्लैंड सीरीज से दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अटैक पे रहना है या डिफेंस पे रहना है। और स्टेप आउट मैंने सिंगल लेने के लिए करा था, तो ऐसा कोई अटैकिंग नहीं होता। स्टेप आउट सिंगल भी ले सकते हैं स्टेप आउट करके। सो वही था कि बॉलर को थोड़ा अनसेटल करके सिंगल डबल, क्योंकि स्लो ट्रैक था, थोड़ा फीट यूज करें तो ज़्यादा ईजी रहता है बैटिंग करने के लिए, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा था।
नंबर 4 पे बैटिंग करने का सर यही था कि एक लेफ्ट हैंडर अगर बीच में बैटिंग करने को मिले थोड़ा ईजियर रहता है स्ट्राइक रोटेशन में, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन अगर बीच में होता है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म डालते हैं, तो इसलिए टीम मैनेजमेंट को लगा कि थोड़ा एक लेफ्टी बीच में होना चाहिए, तो इसलिए वो रोल दिया। और दूसरा बैटिंग के लिए हमेशा यही बात होती है, पॉजिटिव बातें होती हैं कि एज अ इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कभी थोड़ा पेशेंस से कब खेल सकता हूँ, सिचुएशन वाइज कब खेल सकता हूँ, तो बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैच में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उसको। ऋषभ भाई, टेस्ट सीरीज में और पिछले ओडीआई में भी आप नॉन स्ट्राइकर से पूछ रहे थे कि कौन से स्टंप पे था, ये बताते रहना ये सब, तो ये बातचीत अगर थोड़ा सा इलाबोरेट करें क्योंकि आगे जाके आपको काफी टेस्ट खेली हैं सेना कंट्रीज में। नहीं, मोस्टली यही रहता है मेरा। या आप बैटिंग करने की बात कर रहे हो ना? हाँ, आप जब क्रीज पे होते हो तो आप नॉन स्ट्राइकर से पूछते रहते कि कौन से स्टंप पे था। हाँ, तो कभी कभार ऐसे मैं आइडिया लेने के लिए करता हूँ कि क्योंकि एज अ बैट्समैन जब आप बैटिंग कर रहे हो तो ठीक है आपको आइडिया होता है, बट नॉन स्ट्राइकर को थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो कभी कभार कभी बाहर वाली बॉल खेल ली या थोड़ी स्टंप के पास वाली बॉल को कट मार दिया, तो एक बेटर आइडिया लेने के लिए अपने आप को अप टू डेट रखता रहता हूँ मैच के बीच में। Evening, Rishabh. I want to ask from you, where do you think the team got it wrong in today's match? I think we didn't get enough wicket in the middle overs, which they got. I think that was the main difference between both the matches, that we could have played bowled little better, or as a batting unit we could have batted much more better in the middle overs. I think that's a turning point of the game, I guess. ऋषभ, मेरा सवाल ये है आपसे कि 2018 में जब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक सीरीज में जीत हासिल की थी, तो तब स्पिनर्स बहुत अच्छा किया था, कुलदीप और चहल ने। तो क्या इस बार दोनों ही मैचों में इंडियन स्पिनर्स अच्छा कंडीशन मिलते हुए वो भी उतना अच्छा नहीं किया? क्या ये एक बहुत ज्यादा फर्क हो गया दोनों सीरीज में? आई थिंक हो सकता है, बिकॉज लास्ट सीरीज मैंने खेली नहीं थी और मैंने ज़्यादा भूल गया हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एवरी डे न्यू डे के हिसाब से खेलूँ। तो इसमें हाँ थोड़ा स्पिनर एज अ स्पिनिंग यूनिट हम थोड़ा बेटर कर सकते थे, बट वी हैव टू सी, वी आर प्लेइंग अ वनडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी एक फैक्टर है कि टेम्पो में, गेम की टेम्पो, बिकॉज वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ टेस्ट मैचेस, तो थोड़ा एक टेम्पो का डिफरेंस होता है, तो मे बी उसमें थोड़ा लेट हो गए हम लोग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.